جی بالکل، آج میں بالکل ڈفرینٹ، ہائیلی ماڈرنائز، ہائیلی ٹیک اور ہائیلی اسپیسیفکیٹڈ رڈار سسٹم آئیڈیا انوویشنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ہماری فیوچر ٹیکنالوجی ہوگی، جو کہ دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جو ڈیفینس سیکٹرز ہے یا جو ملٹری کے جو گیجٹ اور سینسرز ہیں یا ویپن سسٹم ہیں، اس کی نوعیت کو ہی چینج کر دے گا۔ بلا شبہ ناظرین، آپ جو ہیں سیٹلائٹ ایئر کرافٹ، وار شپ اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ جو میزائل ہوتے ہیں، ڈرون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ادراک و فہم رکھتے ہیں کہ یہ جو سیٹلائٹ ایئر کرافٹ یا میزائل ہوتے ہیں، ڈرون ہوتے ہیں، شپ ہوتے ہیں، ان کے جو ایروڈینامک فریم ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایسے شیپ کیا جاتا ہے کہ جو اس ایسے اینگل جو ہیں اس میں امبیڈڈ کیے جاتے ہیں کہ جو دشمن کا رڈار سسٹم ہے یا ڈیٹیکشن میکینزم ہے، اس شپ کو یا ایئر کرافٹ کو یا میزائل کو یا ڈرون کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ڈیو ٹو ریڈیوس اور لو رڈار سیکشنز۔ اور یہی کیپیبلٹیز جو سیٹلائٹ کیپیبلٹیز ہے ان کو سپیریئر بناتی ہے ایئر کے اندر، سمندر کے اندر، اور اگر دشمن میزائل یا ڈرون سے اٹیک کرتا ہے۔ یعنی دوسرے نمبر کے اوپر سیٹلائٹ ایئر کرافٹ، شپس و میزائل یا ڈرونز ہیں، ان کے جو مٹیریل ہوتا ہے، جو ایروڈینامک فریم ہوتا ہے، اس کو ایسے مٹیریل سے ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کو ہم میٹا مٹیریل کہہ سکتے ہیں، کہ جو کہ آبزرو کرتا ہے، کیا کرتا ہے، جو رڈار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، الیکٹرو میگنیٹوس ویوز ہوتی ہیں، جو اسپیکٹرمس ہوتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اور وہ جو رڈار کی ٹرانسمیشن ہے واپس رڈار سسٹم کے پاس نہیں جاتی۔ ناظرین، اسی تناظر کے اندر جو دنیا کے ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں وہ اینٹی سیٹلائٹ جو رڈار سسٹم ہے ان کی انوویشنز کر رہے ہیں، یعنی کر بھی رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں، جو کہ جو سیٹلائٹ قسم کے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، شپ ہوتے ہیں، میزائل ہوتے ہیں اور ڈرون ہوتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ہوتے ہیں، ایسے رڈار جو کہ اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو جو سیٹلائٹ ایئر کرافٹ یا شپ، میزائل یا ڈرون ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک کاؤنٹر میئرز ہے سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے خلاف۔ لیکن آج میں جس نیو آئیڈیا انوویشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے سپیٹ، یعنی سیٹلائٹ پارٹیکلز امیشن ٹیکنالوجی رڈار سسٹم۔ یعنی کہ ہم سیٹلائٹ پارٹیکلز جو امیشنز ٹیکنالوجی جو رڈار سسٹم ہوگا، اس کے اندر ہم کمپلیکس اور ڈیفیکلٹ جو آئیڈیا انوویشنز ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ الیکٹرو میگنیٹو جو ویوز ہوتی ہیں، ان کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں الیکٹرو میگنیٹو ویو کے، ان کو ہم کیسے شیپ دے سکتے ہیں، کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیسے کور کر سکتے ہیں ایک سیٹلائٹ ڈیزائن کے اندر۔ بالکل ناظرین، یہ جو آئیڈیا انوویشن ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ہے، لیکن پاسبل ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی سائنٹسٹ ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اسپیڈ آف لائٹ کو۔ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کرتی ہے لائٹ، روشنی۔ اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹیکشن میکینزم بن سکتا ہے تو جو سیٹلائٹ پارٹیکل امیشن ٹیکنالوجی رڈار سسٹم ہے یہ بھی بن سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم الیکٹرو میگنیٹو پارٹیکلز کو، یا جو سائیکل ہوتا ہے فریکوینسی کا، یا پھر فریکوینسی کی جو فارم ہوتی ہے، ویو فارم ہوتی ہے، اس کو ہم سیٹلائٹ جو ڈیزائن ہے اس سے مزین کر سکتے ہیں وایا ہائی ٹیک اور کمپلیکس میتھیولوجی کے تھرو۔ یعنی کہ ہم سیٹلائٹ پارٹیکل امیشن ٹیکنالوجی جو رڈار سسٹم ہے اس کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں سب اٹامک جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو، اور ان پارٹیکلز کی مدد سے ہم
प्रोपोगेशंस कर सकते हैं एक वेव फॉर्म के अंदर, एक ट्रांसमिशन के अंदर, एक सैटेलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कि दुश्मन के जो गैजेट हैं, सेंसर हैं, या दुश्मन के जो वेपन सिस्टम्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल हैं, उसको स्ट्राइक करेगा। लेकिन जो दुश्मन है वो आपकी मौजूदगी का पता नहीं चला सकता। लेकिन आप सैटेलाइट एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट्स, इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन वॉरफेयर के गैजेट्स, सिस्टम्स, हर चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। और एंटी सैटेलाइट रडार की जो ट्रांसमिशंस हैं वो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी। सैटेलाइट एयरक्राफ्ट के हाईली मॉडर्नाइज्ड जो सिस्टम है वो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप उनकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस, इंटेलिजेंस, टेक्निकल पैरामीटर्स, डेटाबेस हासिल कर सकते हैं वाया सैटेलाइट पार्टिकल एमिशन टेक्नोलॉजीज़, रडार सिस्टम से। लेकिन नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए आपको डिफरेंट किस्म के जो एस्पेक्ट हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा। नंबर 1, क्वांटम प्रॉपर्टीज़, यानी एक्सप्लॉइटिंग वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी और कोहेरेंस फॉर इनविजिबिलिटी और सिग्नल क्लॉकिंग, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो बैकग्राउंड में रहेगी उस नाइज के अंदर, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर, जो आप मिलियन ऑफ जो आप सिग्नल जो हैं उनको ट्रांसमिट कर रहे होंगे वाया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि हमने डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो कि इंटरेक्ट कर सकें मिनिमाइज लेवल के ऊपर या फिर यूनिक लेवल के ऊपर। किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या करना है? आपने अल्टर करना है वेव फॉर्म्स को और एमिट करना है फ्रॉम मॉड्यूलेटर्स और मैग्नेट्रॉन्स से, जो कि इस वेव फॉर्म को प्रोपोगेशन करेगा, इसकी प्रोपोगेशन करेगा। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी पार्टिकल सोर्सेज की, यानी सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा जो फोटॉन्स हैं जो रोशनी के पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा एक्सोटिक जो पार्टिकल्स हैं, इनके एग्जांपल न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर क्वार्क, इन पार्टिकल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन की, जो कि जनरेट करेगा माइक्रोवेव्स को और मॉड्यूलेटिंग जो पर्पस हैं उनके लिए, और सब एटॉमिक जो बिहेवियर है उसके थ्रू प्रिसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसके अंदर सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी शेप चेंज करने के लिए, सैटेलाइट डिज़ाइन देने के लिए, और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्म है या वेव फॉर्म है उसको सैटेलाइट डिज़ाइन देने के लिए या उसको शेप देने के लिए। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉड्यूलेटर्स के अंदर मॉड्यूलेशन सर्किट्स की, जो कि कंट्रोल करेंगे वेव फॉर्म को और फ्रीक्वेंसीज़ को, और एम्बेडेड करेंगे सैटेलाइट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पार्टिकल्स के साथ। इसके अलावा नाज़रीन, हमको ज़रूरत पड़ेगी नैनो स्ट्रक्चर्स, या फिर हम मेटा मटेरियल्स की बात कर सकते हैं, जो कि इनहांस इंटरेक्शंस जो हैं वो करेंगे एट क्वांटम स्केल्स के ऊपर, यानी जो क्वांटम की सुपर पोजिशन होती है उस स्केल के ऊपर ये इंटरेक्ट करेंगे। और ये तरीक़ेकार क्या करेगा, जो क्वांटम स्केल है ये इनेबल कर देगा क्लॉकिंग को या फिर मिनिमाइज
इंटरेक्शन को, यानी जो आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव स्पेक्ट्रम्स है, रेडिएशन है, वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और इसके दौरान जो दुश्मन है वो आपके दूसरे स्पेक्ट्रम्स को तो इंटरसेप्ट कर रहा होगा, लेकिन जो आपने सैटेलाइट डिज़ाइन या शेप एम्बेडेड किया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर या फिर वेव फॉर्म के अंदर या फिर उस साइकिल्स को जो कि ट्रांसमिट हो रहा है पल्सेस की सूरत में, यानी कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है या नेचुरल जो सिग्नल्स हैं उनको तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सैटेलाइट पार्टिकल जो एमिशन जो स्पेक्ट्रम है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूटिलाइज कर रहे हैं वेव पार्टिकल्स को ड्यूलिटीज़ या उसको सिग्नल मास्किंग देकर उसकी जो नोयत है उसको चेंज कर उसको शेप देकर सैटेलाइट जो कैपेबिलिटीज़ है उसका कवर देकर, और यही वजह है कि दुश्मन की निगाहों से आपकी जो ट्रांसमिशन है, आपका जो रडार सिस्टम है वो अनडिटेक्टेबल रहेगा। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे जो सिग्नल मास्किंग है ये क्या चीज़ है, तो ये जो मॉड्यूलेटर होता है वो सैटेलाइट पार्टिकल्स को इमिट करेगा। क्या किसको इमिट करेगा? जो सैटेलाइट पार्टिकल्स होंगे या सिग्नल्स होंगे इनको इमिट करेगा, ताकि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए दुश्मन की नज़रों से, और आप की जो ट्रांसमिशन है वो बैकग्राउंड नॉइज़ के अंदर चले जाए या फिर जो नेचुरल इंटरफेरेंस है उसके अंदर चली जाए और दुश्मन आपको डिटेक्ट ना कर पाए, आप अनडिटेक्टेबल रहें दुश्मन के सेंसर्स, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सिस्टम है उनसे। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आइडिया इनोवेशंस के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल डिफरेंट, हाईली मॉडर्नाइज, हाईली टेक और हाईली सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम आइडिया इनोवेशंस आपको बताने जा रहा हूं, जो कि हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी, जो कि दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जो डिफेंस सेक्टर्स है या जो मिलिट्री के जो गैजेट और सेंसर्स हैं या वेपन सिस्टम हैं उसकी नोयत को ही चेंज कर देगा। बिलाशुबा नाज़रीन, आप जो हैं सैटेलाइट एयरक्राफ्ट, वारशिप और इसके अलावा सैटेलाइट जो मिसाइल होते हैं, ड्रोन होते हैं, उनके बारे में इदराक व फहम रखते हैं कि ये जो सैटेलाइट एयरक्राफ्ट या मिसाइल होते हैं, ड्रोन होते हैं, शिप होते हैं, इनके जो एरोडायनामिक फ्रेम है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे शेप किया जाता है कि जो उस ऐसे एंगल जो हैं उसमें एम्बेडेड किए जाते हैं कि जो दुश्मन का रडार सिस्टम है या डिटेक्शन मैकेनिज़्म है इस शिप को या एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को या ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ड्यू टू रिड्यूस और लो रडार सेक्शंस। और यही कैपेबिलिटीज़ जो सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ है इनको सुपीरियर बनाती है एयर के अंदर, समुंदर के अंदर, और अगर दुश्मन मिसाइल या ड्रोन से अटैक करता है। यानी दूसरे नंबर के ऊपर सैटेलाइट एयरक्राफ्ट, शिप्स, मिसाइल या ड्रोन्स हैं, उनके जो मटेरियल होता है, जो एरोडायनामिक फ्रेम होता है, उसको ऐसे मटेरियल से डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम मीटा मटेरियल कह सकते हैं, कि जो कि ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, जो रडार की ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो स्पेक्ट्रम्स होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जज़ब कर लेता है, और वो जो रडार की ट्रांसमिशन है वापस रडार सिस्टम के पास नहीं जाती। नाज़रीन, इसी तनाज़र के अंदर जो दुनिया के डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो एंटी सैटेलाइट जो रडार सिस्टम है उनकी इनोवेशंस कर रहे हैं, यानी कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं, जो कि जो सैटेलाइट किस्म के एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप होते हैं, मिसाइल होते हैं और ड्रोन होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन होते हैं।